آپ کی چارجنگ ہے، جب تک چارجنگ نہیں لوگے آپ ڈیڈ ہو جاؤ گے. سوری. تو فالو اپ کرنا، لینا بھی بہت ضروری ہے اور فالو اپ کرنا بھی بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، سسٹم میں دعوت دے دیتے ہیں، بندہ آ کے جوائن کر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نیا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فالو اپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لو جی اس کو جوائن کروا لیا، اب یہ جوائن ہو گیا، مجھے جو بونس آنا تھا وہ آ گیا، اب اس کو میں نے کیا کرنا. یہ ہے مرغی کھانے والی بات، انڈے کھانے مرغی نہیں. مرغی حلال کر کے کھا لو گے تو ایک باری. اگر آپ اس کو فالو اپ کرتے رہو گے تو وہ ساری زندگی آپ کو رزق دیتا رہے گا، وہ ساری زندگی بزنس دیتا رہے گا اور آپ کو ساری زندگی انکم آتی رہے گی. ہم کیا کرتے ہیں، فالو اپ جوائن کروانے کے بعد اس کو کک کرتے ہیں، چلو اس طرف منہ کر، پیچھے سے دڑم مارتے ہیں، چل نکل موجے مار، بس جوائن کر لیا تو نے. خدا کا نام ہے ایسا کام نہ کرو. اگر یہ کام اگر آپ کرتے رہیں گے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ پھر بھی فیل ہو جائیں گے. ہاں آپ کا نیچے والا بندہ کامیاب، یہ نہیں کہ وہ اب کامیاب ہو گیا تو اب چھوڑ دو، کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے اوپر نظر نہیں ہٹانی اس سے پیچھے. وہ جس بھی لیول پہ پہنچ چکا ہے، وہ جتنا بھی کامیاب ہو چکا ہے، وہ جتنا بھی سمجھدار ہو گیا ہے، وہ جتنا بھی سسٹم کو سیکھ چکا ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے سینئر اگر بنا دیا ہے تو آپ سینئر ہیں، یا آپ میں کوئی ایسی بات ہے اس لیے اللہ پاک نے آپ کو سینئر بنایا ہے. آپ ہمیشہ آپ اس سے آپ رہیں گے، سینئر ہمیشہ آپ رہتا ہے. تو بس اس کے اوپر نظر رکھتے رہنا، اس کو فالو اپ کرتے رہنا. نئے بندے کو تو کرنا ہے، دیکھو ہم نے جوائن کروانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، لیکن آپ نے کبھی بھی فالو اپ نہیں چھوڑنا. فالو اپ کرتے بھی رہنا اور ڈیلی کال کر کے اپنے سینئر سے 5 10 15 منٹ گفتگو ضرور کرنی ہے. فضول گفتگو نہیں کرنی. عمران خان آج دھرنا دے رہا ہے تو ماشاءاللہ آج کیا ہو رہا ہے جی اس سے بتائیں. چھوڑو یار، دفع کرو، ہمیں اس سے کیا ہے، یہ نہیں چیز پوچھنی. زرداری کے حالات بتاؤ، آج نیا آرمی چیف آ گیا اس کے حالات بتاؤ. چھوڑ دو ان معاملات کو، اپنے اپنے زندگی میں لگے ہوئے. ہمیں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پوچھتے پھرتے ہیں. جب 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنی بھی بات کرنی ہے، صرف اور صرف پہلی بات میں نے کیا کی تھی، موبائل کیا کرتا ہے، اس کا کام ہے کال سننا، باقی کام تو اس کے ایکسٹرا ہے. وہ باقی کاموں کو پرے مارتا ہے لات اور کال کو پہلے لیتا ہے. آپ نے باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے. کال پہ آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں اپنے سینئر سے سیکھنا ہے. ڈیلی 4 سے 5 منٹ بات کرنی ہے، اور ایک سے نہیں 3 4 5 جتنے بھی سینئر آپ کو قابل لگتے ہیں ان سب سے بات کرنی ہے. 2 2 4 4 منٹ بات کریں، واٹس ایپ پہ کال کریں، جیسے بھی بات کریں. وہ آپ پتہ چیک کیجئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کی بیٹری جو ہے نا اگر ڈیڈ ہوئی ہوگی تو آپ کی چارج ہو جائے گی. اب مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے نا، بیلون میں ہوا ساری نکال دیتے ہیں. سوئیاں سب نے پکڑی ہوئی ہیں نا، سب نے سوئیاں پکڑی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ سے ہوا نکال رہے ہیں، ٹھا 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 ٹھا. کوئی ہوا بھرنے والا نہیں ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں، چلو وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ارسطو کا نام سنا ہوگا. ارسطو اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے جہاں پہنچنا تھا نا وہ سفر تھوڑا دور تھا. یہ ٹریننگ میں نے یوٹیوب پہ بھی لگائی ہے. ماشاءاللہ اتنے لاڈلے اور اتنے ماشاءاللہ قابل ہیں کہ یوٹیوب تو وزٹ نہیں کرتے ہوں گے میرا. چلو سیکھ ہی لیتے ہیں نا، زوم پہ ادھر جا کے کیا کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ 3 4 دن پہلے میں نے یہ ٹریننگ لگائی ہے. اب آنا وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، سفر کرتے ہیں. اب سفر جو تھا تھوڑا دور تھا، ابھی 6 7 کلومیٹر رہتا تھا. تو وہ اس کا جو شاگرد تھا نا ارسطو کا، وہ تھک گیا. ارسطو کا شاگرد جیسے تھک گیا نا تو اب وہ وہاں سے گزرنے لگے. اس نے دیکھا تھک گیا، اس کو نا تھوڑی انرجی دینی چاہیے، تھوڑی موٹیویشن دینی چاہیے. ایک کسان ہل چلا رہا ہے، کسان سے اس نے ارسطو نے پوچھا کہ فلاں گاؤں ہم نے پہنچنا ہے، وہ گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے. اب وہ جو کسان تھا نا اس نے پاؤں سے سر تک دیکھا، دونوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کوئی نہیں، بس 1 کلومیٹر رہ گیا، بس 1 کلومیٹر رہ گیا، 1 کلومیٹر کے بعد گاؤں آنے والا، آپ تو پہنچ چکے ہیں. ارسطو مسکرایا، کسان بھی مسکرایا. اب وہ جو اسٹوڈنٹ ساتھ تھا نا، اب وہ دونوں کو دیکھ کے بڑا حیران ہے، یہ مسکرایا کیوں ہے. اندر ہی اندر یہ بات سوچتے سوچتے وہ 1.5 کلومیٹر سفر کر گیا. اب گاؤں نہیں آیا. اس نے کہا سفر تو ہو گیا، بابے نے تو کسان نے تو ہم سے جھوٹ بولا، گاؤں نہیں آیا. ارسطو کا کوئی بات نہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں.
वहां एक अम्मा जी बैठी थी, अरस्तु ने उससे पूछा, अम्मा जी वो फलां गांव कितना दूर है? अब उसने दोनों को देखा, देखने के बाद ना उसने बोला बस 1.5 किलोमीटर रहता, बस पहुंचने वाले हैं आप, थोड़ा सा दूर है। अब ये सुनकर अरस्तु मुस्कुराया, अम्मा जी भी मुस्कुराई। अब स्टूडेंट देख के फिर हैरान, अब ये दोनों भी मुस्कुरा रहे हैं। यही सोचते सोचते उसने 1.5 किलोमीटर सफर और कर लिया, वो 3-4 किलोमीटर ऐसे उन्होंने कर लिया सफर। अब स्टूडेंट फिर कहता है, अम्मा ने भी झूठ बोला। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी पूछ लेते हैं। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, उसने उससे पूछा कि बाबा जी यहाँ से गांव कितना दूर है? उसने देखा, दोनों को देखने के बाद यही बोला थोड़ा सा दूर है, बस आप तो पहुंचने वाले हैं, बस 1.5 किलोमीटर रहता है। जब ये बात की तो अरस्तु मुस्कुराया, बाबा मुस्कुराया, स्टूडेंट फिर हैरान। करते करते 1.5 किलोमीटर और कर लिए, तकरीबन उन्होंने को 5-6 किलोमीटर सफर कर लिया। अब वहां उसने कहा, बाबे ने भी झूठ बोला। वहां अरस्तु ने उसे बात बताई, उसने कहा वाकई किलोमीटर रह गया हमारा। वहां जब हमने किसान से पूछा, वहां हमारा 7 किलोमीटर सफर रहता था। किसान ने झूठ नहीं बोला, किसान ने हमें दी हिम्मत। अगर वो बता देता कि 7 किलोमीटर रहता है, तू वहीं बैठ जाता। उसने कहा हिम्मत दी, उसने कहा बस 1.5 किलोमीटर रहता है। और तू ये सुन के मोटिवेट होके चल पड़ा। मैं मुस्कुराया इसलिए था कि ये भी किसान मेरे जैसे, मैं भी ऐसे लोगों को मोटिवेट करता हूँ। अम्मा ने जब बात की तो मैं इसलिए मुस्कुराया कि अम्मा ने मोटिवेट कर दिया। इसी तरह उस मोटिवेशन में उनके हौसले ने, हौसले की पजीराई जो उन्होंने की, उस वजह से हम करीब पहुंच गए। अब बाकी किलोमीटर रह गया, हम यहाँ से आगे पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें होती है। माशरे में बहुत कम लोग हैं जो ये कहने वाले कि तू लीडर है, तू चीता है, तू शेर है, तू बब्बर शेर है, तू कर जाएगा। ये कहने वाले कोई नहीं है। हवा भरने वाले कोई नहीं है। सुइयां मार मार के हवा निकालने वाले बहुत हैं। ये कहने वाले बहुत हैं। ये जुमला आप सबने सुन लिया होगा, मुंह देखा है अपना? वो पंजाबी से कहते हैं बूथी वेखी, अपनी गड्डी वाली बूथी है। ये बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। तो खुदा के लिए आज के बाद आपने, कोई बंदा आपके पास राय लेने आ जाए, मशवरा लेने आ जाए अपनी जिंदगी के बारे में, कारोबार बिजनेस के बारे में, तो ये ना कहें ओ हो ये तो बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए उसे डराना नहीं है, उसे हौसला देना, उसे हिम्मत देनी है। आप हिम्मत देने वाले बनेंगे, आपकी वजह से कई हिम्मत देने वाले बनेंगे, तो एक ना एक दिन तो हमारा ये माशरा चेंज होगा। इंशाल्लाह सारे हिम्मत देने वाले बन जाएंगे। तो क्या करना है? सॉरी, फॉलो अप देते भी रहना है और फॉलो अप लेते भी रहना है। फॉलो अप लेना किस लिए, देना किस लिए है? फॉलो अप देना इसलिए कि उसकी बैटरी चार्ज करते रहे। फॉलो अप लेना किस लिए? अपनी बैटरी चार्ज करवाते रहे। लोग आपको डिसहार्ट करेंगे, शाम को सीनियर को कॉल करके आपने फिर से मोटिवेट हो जाना है। अगले दिन लोग फिर डिसहार्ट करेंगे, फिर सीनियर को कॉल करेंगे, फिर से मोटिवेट हो जाना है। जब ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारी ट्रेनिंग का, कभी भी नकाम और नेगेटिव लोगों में नहीं बैठना। खुदा के लिए उनसे सलाम तो लेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे सलाम भी ना लो। सलाम लेना है, ये सुन्नत तरीका है, वो लेना चाहिए, लेकिन सलाम लेने के बाद उससे गुफ्तगू नहीं करनी। किससे? जो नकाम है या जो नेगेटिव सोच रखने वाला बंदा है, वो आपकी सलाहितों को खा जाता है जैसे दीमक खा जाता है। आप ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 6 महीने शराबियों में बैठना शुरू कर दें, अपने आप को जितना मर्जी रोक लें, लेकिन 6 महीने आप शराबियों में बैठे बैठे रहें, 6 महीने शराबियों में आप बैठे रहें, चेक कीजिएगा अपने आप को, जितना मर्जी आप रोक लें, सब्र कर लें, वो आपको मोटिवेट करके एक ना एक दिन शराबी बना देंगे। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाजियों में बैठना शुरू कर दें, चेक करें कुछ दिनों के बाद आप पक्के नमाजी बन चुके होंगे। आप अमीर लोगों में बैठना शुरू कर दें, चंद दिनों के बाद चेक कीजिएगा आपकी सोच अमीरों वाली होगी। उसके बाद इंशाल्लाह चंद महीनों में देखिएगा आप में अमीरी आना शुरू हो जाएगी। आप गरीब लोगों में बैठना शुरू कर दें। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप काबिल इंसान है, तो आप नेगेटिव लोगों में बैठना शुरू कर दें। चेक कीजिएगा चंद दिनों के बाद आपको यूं लगेगा बस दुनिया तो खत्म होने वाली है, आपको यूं लगेगा बस क़यामत ही क़यामत है। तो अपने अच्छे लोगों में बैठा करें, अच्छी महफिल में। सर जगह जो होती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं आपको यह एक मिसाल से समझा देता हूँ। एक मजदूर ने मट्टी उठाई, उसमें पानी डाला, उसको गूंदा,
गूंदने के बाद उस मट्टी को सच्चे से गुजारा और 2 ईंटें बनाई कच्ची। उन दोनों ईंटों को उठा के एक ही भट्ठे के अंदर रख के गर्म करके पका लिया। पकाने के बाद दोनों ईंटों को निकाला, एक को लगा दिया मस्जिद के सेन में और दूसरी ईंट को लगा दिया उसने वॉशरूम में। अब दोनों ईंटों की मट्टी एक, दोनों ईंटों में पानी एक, बनाने वाला मजदूर एक ही सच्चे से गुजरी और एक ही भट्ठे में गर्म हुई। लेकिन एक जो मस्जिद के सेन में लगी है, जब आप उस पे खड़े होंगे, उस ईंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। वो जो ईंट वॉशरूम में लगी है, जब उस ईंट को इस्तेमाल करेंगे क्या सवाब मिलेगा? कभी सवाब नहीं मिलेगा। अब ईंटों का कसूर है, मट्टी का कसूर है, पानी का कसूर है, बनाने वाले का कसूर है? नो, कसूर किस चीज का? जगह का, वो जहां लग गई है उसकी गलती है कि वो वॉशरूम में लग गई है। सर आप घर में नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब है। आप मस्जिद में पढ़े, 27 नमाजों का सवाब है। मस्जिद नबवी में पढ़े, 50,000 नमाजों का सवाब है। और अल्लाह के घर में जाके मस्जिदुल हराम में पढ़े जाके 1,00,000 नमाज का सवाब है। सजदे वही हैं, रखते वही हैं, चेंज क्या हो रहा है? जगह। सर आपने सोच, आपको बनाने वाला, हम सबको बनाने वाली जात एक ही है, अल्लाह पाक की। हम सबको किसने बनाया? अल्लाह पाक ने बनाया। सबके बॉडी वजूद एक। जो गाड़ी में बैठा ना उसको चेक कीजिएगा, उसकी 6 आंखें नहीं है, उसके 8 हाथ नहीं है, उसके सींग नहीं है, उसको दुम शुम नहीं लगी हुई है। चेक कीजिएगा उसमें और आप में कोई फर्क नहीं, वो सेम आप जैसा है। अल्लाह ने फर्क कोई नहीं किया है, बनाने वाली जात ने कोई फर्क नहीं किया है। उसने सबको आंखें दी हैं 2, सबको हाथ 2 दिए, सबको पांव 2 दिए, सबको एक नौजी दी है, सबको सेम सेम बनाया अल्लाह पाक ने। खूबसूरती बदसूरती थोड़ी बहुत आ जाती है, ये नहीं है। बाकी जो नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं वो सबको एक जैसे दी हैं। फिर एक के पास बड़ी चीज होती है, कामयाबी होती है, के पास नाकामी होती है। तो वजह किस चीज का है? वजह उनकी सोच और दूसरी वजह उनकी जगह, जिस जगह वो रहते हैं। अगर आप कामयाब लोगों में रहते हैं तो आपकी सोच कामयाब वाली और फिर आने वाला दौर आपका कामयाब है। आप नाकाम लोगों में रहते हैं तो आपकी सोच नाकाम बन जाती है और आने वाले दिनों में आप नाकाम हो जाते हैं। तो अपनी जो महफिल है ना, मतलब सादा लफ्जों में, या आपका जो अहबाब है, मतलब फ्रेंड्स का जो एक अहबाब है, जो ताल्लुक है, या रिश्ता है, या एक क्राइटेरिया है, उसको चेक कीजिएगा। उसमें अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए, उसमें पॉजिटिव लोग होने चाहिए। देश में ये चीजें होती है, अगर आप पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव लोगों में बैठेंगे नेगेटिव। तो फॉलो अप किस लिए लेना है? ये सीनियर लोग हैं, ये पॉजिटिव लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं। इनसे अगर आप अटैचमेंट रहेंगे तो इनकी सोच, सलाहियतें, चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह आप उन जैसे बन जाएंगे। तो क्या करना है? आपने मुस्बत लोगों में और कामयाब लोगों में रहना शुरू कर देना है, नाकाम लोगों में नहीं रहना। कि आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो इस चीज पे अमल कर लें, इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। आपको हौसला मिलेगा, यहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी। ये नेटवर्कर बड़े कमाल के होते हैं, ये जो सीनियर है ना बड़े कमाल के हैं। जब आप इनसे बात करते हैं तो पता क्या कहते हैं? तू तो शेर है, तू तो मेरी शेर नहीं है, और तू तो बब्बर शेर है। ये नहीं कहते बुद्धि वेखी अपनी, ये नहीं कहते। ये आगे से आपको कहते हैं तेरे जैसा है ही कोई नहीं। ये नहीं कहते तू नहीं कर सकता, ये कहते हैं तुम ही तुम हो, तुम पे दुनिया खत्म, और लीडर है तेरे अंदर। ये चीजें जब आप सुनते हैं तो फिर आप वैसा बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास रहें जो आपको पॉजिटिव रखें, आपको एनर्जी दें, आपके माँ बाप की खुशियां आपको दिलाना चाहें। इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिल जाएगी। 6 मिनट पूरे ऊपर दे दिए मैंने आप लोगों को। तो अल्लाह पाक सलामत रखे आप लोगों को। मेरा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा साथ आपके साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सिखाता रहूंगा, बस सीखते रहें। और सबसे बढ़ के यार ट्रेनिंग में यही कहता हूँ, अमल करते रहें। अमल के बगैर कुछ नहीं है। मैं जितना जोर लगा लूं, आप जितना टाइम दे दें सीखने पे, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, अगर अमल नहीं करेंगे, तो उन चीजों को फायदा कोई नहीं होना। तो ये जो आज चीजें मैंने बताई है ना, इन पे अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी में बड़ी कामयाबी देंगे आपको। दिन दूर नहीं है कि लोग जीना आपसे सीखेंगे, लोग अपने बच्चे आपके पास लेके आएंगे और आपसे राय लेंगे कि आप हमें बताओ, हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए।
आप हमें बताओ, हमें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए। मुझे ये कहा गया था, मुझे कहा गया था, मतलब मेरे बचपन में, नेटवर्किंग के बचपन में मुझे ये कहा गया था कि लोग आपसे ये सलाह मशवरा लिया करेंगे, लेकिन मुझे लगता था कि ये नहीं होगा। आपको भी यूं लगता होगा, लेकिन आपने ऐसा सोचना नहीं है। आप ऐसा जो मैं कह रहा हूँ उसको सच मान रहे हैं, और फिर वो हुआ। एक वो टाइम था कि मेरे गांव के लोग पागल कहते थे। एक वो टाइम आया मेरे गांव में, तकरीबन कोई 15 से 20 रिश्ते ऐसे हुए जिन्होंने मुझसे राय ली। आप बताओ, हमें उन रिश्तों में मुझे बिठाया गया। जब वो देखने वाले आए तो मुझे बिठाया गया, आप जजमेंट करके बताओ ये अच्छे लोग हैं या नहीं है। कभी वो टाइम था कि मुझे पागल कहा गया था, कभी वो टाइम आया कि लोग अपने रिश्ते करते टाइम मुझसे राय लेते थे। तो आपसे ये चीजें होंगी इंशाल्लाह, ये दूर नहीं है वक्त कि लोग आपसे जीना सीखेंगे। लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आपसे राय लेंगे कि आप वो काबिल इंसान हैं, आप वो काबिल बंदे हैं, आप वो काबिल बंदी हैं जिन्होंने इस माहौल में रहते हुए अपनी और अपने वालिदैन की सारी खुशियां पूरी की हैं। आप जैसा तो काबिल है ही कोई नहीं। आप हमें बताओ, हम बच्चों को क्या करवाएं। फिर फैसलाबाद से मुझे काले आती हैं, इधर से दूर दूर से काले करके लोग पूछते हैं, तनवीर भाई हमें बताओ, हम बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, आगे क्या करवाना चाहिए, बच्चे ने स्टडी पूरी कर ली, आप बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। तो फिर ये वक्त आप पे भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन चीजें जो आज मैंने पॉइंट बताए ना, ये यूं समझ लें कि जैसे तवीज है आपके लिए, इसको पल्ले में बांध लें, इन पे अमल करना शुरू कर दें, फिर कामयाबी दूर नहीं है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। लुकमान भी को बात करनी हो?